everyone, welcome to Nucleon Coaching. Today we will do a quick revision on chemical thermodynamics. So in this video, we will cover up those topics which are frequently asked in JEE, and at the end we will also cover up the previous year questions for our better understanding. So let's get started. Thermodynamics. So what is the term thermodynamics actually means? Thermo means it is talking about heat and dynamic means motion. So thermodynamic is a branch of science that converts heat energy into different form of energy, and to what extent the thermodynamics, the change in heat energy affects the matter. Okay. What is the objective of thermodynamics? Or the main objectives of thermodynamics are, it talks about the various heat changes, for example, the enthalpy, the internal energy, Gibbs free energy. We will talk those topics. It is also talk about the various thermodynamic processes. It also talks about the first, second and third law of thermodynamics. Also, to what extent that particular reaction can undergo change in energy. Thermodynamics also talks about the feasibility of the reaction. For example, like what type of reaction will undergo in spontaneous processes or non-spontaneous processes. These things we also study in thermodynamics. So before moving to thermodynamics in detail, first we have to understand the basic concept of thermodynamics. So the most basic concept of thermodynamics are system, surrounding and the boundary. Now what is a system? System is a that part of universe where actually the observation of that particular reaction is undergoing. Okay. So this is a system and the remaining part of the universe is our surrounding. The system and surrounding is separated by an imaginary wall. That particular imaginary wall is our boundary. Okay. सिस्टम वो है जहाँ पे हमारा काम हो रहा है, जो हमारा रिएक्शन है वो जहाँ पे अंडरगो हो रहा है, ठीक है. और सिस्टम के बाहर जो रिमेनिंग पार्ट है वही हमारा सराउंडिंग है. मूविंग टू द अनदर स्लाइड. नाउ देयर आर आल्सो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम. वो सिस्टम्स क्या है? पहला है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. अभी जब हम लोग चाय पीते तो जो चाय पी रहे हम देखते कि मैटर एक्सचेंज हो रहा है प्लस हीट भी पास हो रहा है, तो वो क्या सिस्टम है? दैट इज ओपन सिस्टम. ओके. क्लोज सिस्टम, सो वही पर्टिकुलर कप जब हम लोग ढक देते तो वहाँ से क्या होता है? हाँ, वहाँ से सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जो मैटर है वो मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ द क्लोज सिस्टम्स एग्जाम्पल. आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम फॉर एग्जाम्पल हमारा थर्मोफ्लक्स. तो जब हम लोग थर्मोफ्लक्स यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? बहुत देर तक वो गर्म पानी स्टोर कर सकते हैं, राइट. हाँ, मैटर जो हीट है वो चेंज होता है, लेकिन वो जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो बहुत ही स्लो होता है. इट इज़ इन अ वेरी स्लो प्रोसेस. ओके. So that type of system is known as isolated system where neither heat nor matter can get exchanged. Okay. Moving to another topic is the intensive and extensive property. अभी intensive और extensive क्या होता है? Intensive property वो है जैसे कोई भी एक substance है, ठीक है. हम अगर उसका कुछ भी property determine करना चाहे तो वो उसके अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो डिपेंड नहीं करेगा अमाउंट ऑफ द मैटर में, ठीक है. फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं एक बीकर लेती हूँ और इस बीकर में मैंने 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है. अभी इस सेम बीकर में पकड़ लो, ये 100 ml का बीकर है. सो ये बीकर से अगर मैं ये जो सॉल्यूशन है उससे ट्रांसफ़र करूँ 2 और ऐसे सिमिलर बीकर्स में, तो तब क्या होगा? यहाँ पे तुम जो हमारा मोलरिटी है मैं इस वाले बीकर से निकालूँ या फिर इस वाले बीकर से,
इसका मोलरिटी सेम ही रहेगा, मोलरिटी विल बी 1 मोलर, ओके। बट ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, तो यहाँ पे जो मास है ये मास का क्वांटिटी कम जाएगा, ठीक है। सो यही होता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का डिफरेंस। एक्सटेंसिव वो है जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिव वो है जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसका कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मोलर वॉल्यूम। तो जब भी ये मोलर टर्म इंट्रोड्यूस होगा हमेशा याद रखना है कि ये हमारा 1 मोल के हिसाब से हमारा वॉल्यूम दिया गया है। डेंसिटी फिक्स रहता है। रिफ्रैक्टिव एंड इंडेक्स इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ लिक्विड इट विल बी सेम, उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो या कम हो उससे मैटर नहीं करता है। फ्री एनर्जी एंड स्पेसिफिक हीट, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटर एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है, ये सब इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी अगर मैं टेम्परेचर की बात कहूँ तो अगर मैं एक सेम बीकर में पानी लेती हूँ, वो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम पानी अगर मैं दूसरे वाले कंटेनर में कम अमाउंट में भी ट्रांसफ़र करूँ उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर सेम ही होने वाला है। सो इसीलिए टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या होता है, ये सब हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जो वॉल्यूम, अभी मैंने जो पानी जो ट्रांसफ़र किया है उससे क्या हो रहा है, पहले वाले का वॉल्यूम कम रहा है, घट रहा है, तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट इज वाई इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that we have to note down is that always remember that is ratio of any two extensive property will be always equals to intensive property. अभी इसका एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मोलरिटी, हमें पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या होता है, ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मोलरिटी is an intensive property. That is why the ratio of extensive properties gives us the molarity. Density क्या बात बोलूँ, density क्या है, density is equals to mass by volume. Again मास और वॉल्यूम क्या होता है, दोनों मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, that is state function and path function। तो state function और path function के बीच डिफरेंस क्या होता है। अभी कोई भी एक रिएक्शन है, पकड़ लो ए से मुझे प्रोडक्ट चाहिए बी। सो ये प्रोडक्ट मिलने के लिए मैंने कौन सा डायरेक्शन लिया है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये बस डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर, उसी को कहते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है, पाथ फंक्शन मतलब मैंने कौन सा डायरेक्शन लिया है उसके ऊपर ये पाथ फंक्शन डिपेंड करेगा। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। Heat, work, loss of energies, these are path function, okay, because it depends upon the path that we take during the reaction। लेकिन स्टेट फंक्शन में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, ये सब स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अनदर टॉपिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जैसे कि अभी अगर मैं एक कंटेनर लेती हूँ,
उस कंटेनर में गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने एक पिस्टन अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल उसका एक्सटर्नल प्रेशर होगा P, ठीक है। अभी अगर मैं इसे स्मॉल चेंज इन प्रेशर के अंदर रखूं तो क्या होता है कि क्योंकि ये प्रेशर धीरे धीरे कम रहा है तो ये जो गैस का एक्सपांशन होगा वो भी स्लोली होगा, और किसी भी वक्त में ये प्रेशर को फिर से स्टॉप करके उसे पहले जैसे लगा सकती हूँ। तो ये क्या होता है, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि जो चेंजेस है वो इन्फाइनेटली स्मॉल चेंजेस में ऑकर होता है। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस लार्ज और फाइनाइट फॉर्म में चेंजेस होता है, ओके। जो वर्क डन होता है उसका जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो dP के अंदर होता है, और इरिवर्सल में हम उसे डेल्टा P में डिनोट करते हैं। सो these are some differences between reversible and irreversible process. Always remember, in nature all the natural process that are occurring are undergoing irreversible processes, okay. So now we will talk about internal energy. So internal energy क्या होता है? internal energy sum up of all the energies प्रेजेंट इन सिस्टम होता है, ठीक है। अभी एक सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में हमारा पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड्स, राइट। ऑल दिस मैटर, ऑल दिस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सिस्टम। उसमें क्या होता है कि कोई पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मोशन दिखाते हैं, कोई रोटेशनल मोशन दिखाता है, किसी का काइनेटिक एनर्जीज होता है, लाइक हर एक का काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है। तो वो सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी को जब हम लोग सम अप करते हैं तो तभी जाके हमें U मतलब इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, हमें इंटरनल एनर्जी मिलता है। इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज हाउ टू फाइंड आउट द रियल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक हर एक का अपना अपना एनर्जीज होता है, चेंज भी होते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटर एनर्जी को रियल वैल्यू में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जब भी वो सिस्टम कोई चेंजेस अंडरगो करते हैं तो तब क्या होगा, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी आइदर डिक्रीज या फिर इंक्रीज होने वाला है। सो उसी समय हम लोग डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस डेल्टा U? डेल्टा U को कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसी टर्म को मैथमेटिकली जब हम लोग इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में बोलते हैं तो उसे कहा जाता है डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अगर चेंजेस लाना होगा तो उसका एनर्जी, हीट एनर्जी आइदर रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होना चाहिए, वर्क डन इन द सिस्टम और बाय द सिस्टम होना चाहिए, तभी जाके हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएगा। उसी को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। Now there are some other types of thermodynamic processes which occur in our nature. This type of thermodynamics are isobaric, isochoric, isothermal and adiabatic, okay? आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जैसे कि कोई भी सिस्टम होगा, उस सिस्टम में अगर मैं टेम्परेचर को प्रेशर को कांस्टेंट रख दूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी बॉयल वाटर, अभी पानी को गर्म करने के लिए हम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कांस्टेंट ही रख रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा एक आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस वो टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं लाते हैं, ठीक है। अभी अगर वॉल्यूम में चेंजेस ना हो तब क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बीकर लिया और उसमें टेम्परेचर को चेंज किया और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तब क्या होगा? देयर आर सम गैस मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, सो
ड्यू टू द increase in temperature this gas molecule will also gain its kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी गेन करने के कारण इसके अंदर जो है ना वो हीट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बाउंड करता है इस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। फिर डिक्रीज करने के बाद फिर से उसको अपने पोजीशन में लाता है ताकि हम इस वॉल्यूम को कांस्टेंट रख पाए, ठीक है। तो ये होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिमिलरली हमने एक बीकर लिया, अभी इस बीकर में कोई भी रिएक्शन अंडरगो हो सकता है, किसी भी प्रोसेस में कोई भी रिएक्शन अंडरगो हो सकता है, जैसे कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, whatever type of reaction it can undergo, ठीक है। Now consider if exothermic reaction undergoes in an isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन जो ये वाल्स है, ये वाल्स तो कंडक्टिंग वाल्स ही है, ये भी कंडक्टिंग वाल्स है, ठीक है। ये सारे कंडक्टिंग वाल्स है। कंडक्टिंग वाल्स क्या करते हैं, ये हीट को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ओके। तो अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया तो इसमें तो हीट का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे इस सिस्टम का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफर कर देगा इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। सिमिलरली अगर एंडोथर्मिक हुआ तो एंडोथर्मिक क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। ऑल्सो अगर मैंने यहाँ से ऊपर से अगर प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या होगा, ये कंप्रेस होने वाला है। विथ कंप्रेशन द गैस पार्टिकल्स विल ऑल्सो come more close to each other, collision will increase, that is why the heat will also get absorbed into the system, okay, and by this they also keep the temperature constant. Moving to another process, that is adiabatic process. Adiabatic process में क्या होता है, adiabatic process वही type of system होता है जो heat को exchange system से surrounding या फिर surrounding system में एक्सचेंज होने के लिए नहीं देता है, ओके। इट रेजिस्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ओके। दैट टाइप ऑफ वॉल ऑफ दिस कंटेनर इज ऑल्सो नोन एज एडियाबेटिक वॉल, ओके। अच्छा, अभी हम जब भी ये रिएक्शन करते हैं तो हर एक सिस्टम एक पर्टिकुलर वर्क डन करता है, ठीक है। अभी अगर वो रिएक्शन नेचुरली ऑकर्ड है, नेचुरली ऑकर होने से क्या होगा, वो प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा याद रखना है कि उसका जो इक्वेशन होगा टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, ओके। And for reversible process, the work done is minus 2.303 log V2 by V1. So these are some of the properties of thermodynamics. Okay. Okay. So now we will plot the pressure volume graph for the thermodynamic processes. So in this graph we notice that, now if I draw the graph here again, okay, so इस ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मेरा सिस्टम आइसोबेरिक सिस्टम हुआ, आइसोबेरिक सिस्टम में क्या होता है, आइसोबेरिक सिस्टम में प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो तब क्या होगा, द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ विल बी इन दिस मैनर, ओके। वॉल्यूम माइट गेट इंक्रीज्ड और डिक्रीज बट द प्रेशर विल ऑलवेज कीप कांस्टेंट। अगर सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस दिखा रहा है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब क्या होने वाला है, तब मेरा ग्राफ देखने में कुछ ऐसा होगा। सो ये मेरा आइसोबेरिक है एंड दिस इज
आइसोकोरिक। ओके, अभी आते हैं आइसोथर्मल। नाउ उसे भी अगर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में प्लॉट करें तो क्या होता है, सिंस हमने अभी जस्ट रिवाइज किया था कि जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तब ये सिस्टम जो रिएक्शन अंडरगो करेगा वो प्रेशर को आइदर डिक्रीज और इंक्रीज करेगा। सिमिलरली ये वॉल्यूम आइदर कंप्रेस या फिर एक्सपांड होने वाला है। सो दैट इज वाई इसमें जो हमारा ग्राफ है वो स्लाइटली ऐसा कर्व दिखाता है, ठीक है, where volume might get increased with decrease in pressure in this particular system to keep our temperature of that particular system constant. Okay, moving to the last graph, that is for adiabatic process. अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग हीट को लूज नहीं कर सकते। The heat cannot be loose from the system to the surrounding. Similarly, ना तो heat exchange from surrounding to system होने वाला है, ठीक है। तो अभी इस टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होता है, ये जो गैस पार्टिकल्स है ये प्रेशर और वॉल्यूम में तो चेंजेस करेंगे इन ऑर्डर टू कीप द हीट इनटू द सराउंडिंग, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ज़्यादा बढ़ेगा तो एक्सपांड होने का चांसेस है, वॉल्यूम तो एक्सपांड हो गई। तो बिकॉज ये हीट कंटेंट ज़्यादा है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीप नज़र आता है। ओके, सो दिस इज आवर एडियाबेटिक and this is isothermal. So adiabatic process में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो ज़्यादा स्टीपर होता है आइसोथर्मल के कंपेयर में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज हीट कैपेसिटी। अभी हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी का मतलब इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड in a system to raise its temperature by 1 degree or 1 Kelvin. तो हीट कैपेसिटी भी दो तरीके के होते हैं, वो है मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जिसका इक्वेशन होता है Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, वेयर N इज आवर नंबर ऑफ मोल्स। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइदर 1 ग्राम ऑफ a particular substance, that is known as specific heat capacity, which is equals to Q divided by M delta T. So here M is the mass of the substance. Specific heat capacity अगर हम लोग गैसेस के ऊपर देखें तो तब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में हमारा जो डेल्टा टी है वो ज़ीरो होगा क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। सो अगर मेरा डेल्टा टी कांस्टेंट है तो मेरा सी का वैल्यू क्या होने वाला है, Q बाय ज़ीरो, एंड वी नो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा जो डेल्टा Q है दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। So similarly here if our Q gets 0, so specific heat capacity will also be 0. Similarly isobaric process, अभी isobaric process में क्या होता है, isobaric process में हमारा pressure constant रहता है। So उसका इस इक्वेशन इस फॉर्मूला के ऊपर कोई चेंजेस नहीं दिखाया जाता। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली बस हमारा इक्वेशन दिखाएगा, दैट इज Cp equals to Q by M delta T, and for isochoric it will show Cv equals to Q divided by M delta T. Okay, so moving to the next slide. Okay, so इसी फॉर्मूला से हम लोग हीट कैपेसिटी को डेल्टा U और डेल्टा H के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करना है, अच्छा तो हमें पता है डेल्टा U का मतलब क्या होता है, डेल्टा U का एक फॉर्मूला दिया गया था दैट इज Q प्लस W, राइट।
We also know W is equals to minus P delta V और माइनस पी डी वी. ओके, सो अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो तब क्या होगा, मेरा जो डी वी और अगर मैं उसे डेल्टा वी भी कंसिडर करूँ तो वो क्या होगा, दैट इट विल बी इक्वल्स टू 0. सो दिस होल टर्म ऑफ W विल बी 0. So that is delta U is equals to Q. Now what is Q here? Q is our heat. So heat capacity will be equals to CV and delta T. Okay. So this is another equation that is frequently asked in JEE mains. Now there is a relation between CP minus CV. So what is the relation term is? It is Mayer's equation. Mayer's equation says that Cp minus Cv is equals to R, where Cp and Cv is what? It is our molar heat capacity at constant pressure and at constant volume, and R is the gas constant. So this is an important equation for thermodynamics. Okay, और mostly इससे questions तो आते ही है. नेक्स्ट आता है हमारा एंथैल्पी. अभी एंथैल्पी क्या होता है, हमने इंटर एनर्जी पढ़ा, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. एंथैल्पी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है. एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट इन ए पर्टिकुलर सिस्टम. अभी उस हीट कंटेंट में हमारा इंटर एनर्जी भी आता है और जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होता है ना उसमें, वो भी एंथैल्पी के अंडर ही आता है. सो एंथैल्पी कैन also be written in mathematical term, that is H equals to U plus PV. Just like inter energy, enthalpy can also be not find out in its real form. Okay, उसका जो real value है वो हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन उसका चेंजेस निकाल सकते हैं. जब भी कोई रिएक्शन अंडरगो होगा तो ऑब्वियसली एंथैल्पी भी चेंज होने वाला है, राइट. सो उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसे डिनोट करेंगे डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. अभी ये P क्या होता है, ये जैसे कि जो हमारा इंटर एनर्जी था उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, लेकिन एंथैल्पी में क्या होता है, ये जो प्रेशर है वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट द चेंज इन एंथैल्पी. We also know that in ideal gas equation P delta V is equals to delta nRT. So इस P delta V को अगर हम इसमें अगर पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो हमारा और एक नया इक्वेशन बन जाता है, that is delta nRT. और ये delta n क्या होता है, delta n is the change in number of moles. Okay. सिमिलर टू दिस हम इसी से हीट कैपेसिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. कैसे रिलेट करना है, अच्छा, तो हमें पता होता है कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. हमें पता है डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे माइनस पी डेल्टा वी से, तो उसे क्या होगा, हमें एक नया इक्वेशन मिलने वाला है, दैट इज माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी. ओके, सो इसे हम लोग कैंसिल करने से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्यू पी. ओके, एंड हियर क्यू पी स्टैंड्स फॉर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. सो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं, दैट इज वी कैन रिलेट इट विथ Cp डेल्टा T, राइट. सो इसे बस इसमें अगर प्लॉट कर दे तो हमारा वैल्यू क्या आने वाला है. ओके, सो वी नो दैट हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा T. ओके, सो अगर Q को हम निकालते तो हमें क्या होगा, Cp डेल्टा T. और अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसे हम लोग और एक इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज डेल्टा H इक्वल्स टू n Cp delta T. So this is one more important equation
that we usually use for constant pressure. So these are some of the important topics. Okay, so the last topic that we are going to discuss is our entropy and Gibbs free energy. Okay, so entropy क्या होता है? Entropy talks about the disorderness of the substance. अभी disorderness मतलब क्या होता है? Randomness. Okay, जैसे कि एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसमें अगर मैं गैसियस मॉलिक्यूल को रख दूँ and I just raise the temperature, then what it will happen? These gases will move here and there, right? If I decrease the pressure, this randomness of this molecules will increase furthermore because उसे escape करने के लिए एक मौका मिल गया, ठीक है. Similarly और एक example देते हैं, जैसे कि कोई भी liquid हुआ, okay, that particular liquid, if I raise the temperature, the molecules will vibrate in its original place. Due to that vibration, the bond between the liquid molecules will break down and it will try to convert into gaseous substance. So उसमें भी क्या हो रहा है? उसमें भी disorderness, वो पहले एक बहुत ही closely properly arranged form में था, उसका arrangement disturb हो रहा है. क्यों? Because मैंने उसका temperature बढ़ा दिया. तो due to the increase in temperature, the arrangement got disturbed. That disturbance or randomness in that particular system that occurred is our entropy. हमेशा याद रखना है कि जो यूनिवर्स में होता है, यूनिवर्स का एंट्रोपी इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे. ओके, नाउ एंट्रोपी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एंट्रोपी इज इक्वल्स टू Q by T. ओके, it is directly proportional with the heat and inversely proportional with the temperature. Whenever we talk for reversible process, delta S in the universe will always be equals to 0. Why 0? रिवर्सिबल है, तो अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जा भी गया, फिर से वो रिवर्स कर सकते हैं, राइट? इक्विलिब्रियम ऑकर होगा, तो उसी के कारण ये रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू हमेशा 0 होता है. लेकिन जब भी हम इरिवर्सिबल, जैसे कि मैंने अभी बोला कि यूनिवर्स में मेरा जो एंट्रोपी होगा वो हमेशा पॉजिटिव का वैल्यू दिखाने वाला है. ओके, वाई पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा? क्योंकि डेल्टा एस इरिवर्सिबल प्रोसेस में it is showing us more randomness in the system. Okay, that is why it is greater than 0. अभी अगर एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, उसे अगर प्रॉपरली अगर डिफाइन करना है तो उसे हम लोग गिब्स एनर्जी से डिफाइन कर सकते हैं. गिब्स एनर्जी क्या होता है? गिब्स एनर्जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम जिसे हम लोग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसमें कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, जैसे कि इंटर एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, राइट? वो सारे एनर्जी को हम लोग किस तरह से यूजफुल वर्क में लगा सकते हैं, उसी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी का एक इक्वेशन है, दैट इज G इक्वल्स टू H माइनस TS. द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. सो इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो ये गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव शो करने वाला है. अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है देन इट विल बी पॉजिटिव, एंड अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी 0 शो करने वाला है. इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ, वो है साइन कन्वेंशन. हमेशा याद रखना है कि जब भी सिस्टम कोई वर्क करता है, मीन्स if the system is doing the work is done by the system. Okay, if it is doing by the system, then it will be always negative. The sign convention will be negative. If work is done on the system, then it will be positive. Similarly, अगर एक system heat release कर रहा है, तो heat release कौन कर रहा है? System कर रहा है. So heat release मतलब exothermic के लिए भी heat का जो हमारा वैल्यू होगा वो नेगेटिव में आएगा. अगर एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा. ओके, सो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड हियर. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज a well stoppered thermoflux contains some ice cubes. This is an example of closed system, open system or isolated system. So the term thermoflux itself says that it is an isolated system. Moving to the another topic, that is
this question talks about a type of process where no heat enters or leaves the system. So we already have studied about the thermodynamic processes. So these are the 4 thermodynamic processes. Among these, adiabatic process is that type of process which doesn't allow the heat to transfer from system to surrounding or the vice versa. Okay. Question number 3. The total number of intensive property from the following are, the options are volume, molar heat capacity, molarity, E cell, Gibbs energy, and molar mass and the mole. So what was intensive property? Intensive property were those property where the amount of substance is independent of it. Okay. Intensive property doesn't depend on its mass. It is mass independent. So volume cannot be an intensive property. Molar heat capacity is an intensive property. Molarity is an intensive property. E cell is also intensive property. Gibbs free energy is an extensive property as it depends upon the mass. Molar mass of any compound is an intensive property. And mole is an extensive property, since mole means given mass divided by molecular mass, and the mass of the system depends upon its matter. Question number 4. Which of the following statement is false? Work is a state function. We know work is a path function. So option number A will be correct. Temperature is a state function. True. Change in the state is completely defined when the initial and final states are specified. This is also true because state function depends on the initial and the final state of the system. Okay, it doesn't depend on which path it has occurred. Work appears at the boundary of the system, which is also correct. So our option number 1 will be the correct answer. Question number 5 is, an ideal gas is allowed to expand from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar. We need to find the work done in kilojoule. So here the expansion is from initial volume which was 1 liter and final volume is 10 liter. Here external pressure is given to us, which is 1 bar. So therefore we know that work is equals to minus P external into delta V. Here external pressure is 1 bar and delta V will be 10 minus 1, which is minus 9 liter bar. So 1 liter bar is equals to 100 joule. So since 1 liter bar is equals to 100 joule, therefore it will be 900 joule. We need the answer in kilojoule. So in kilojoule it will be, we need to divide it by 1000. So the answer will be minus 0.9 kilojoule. So option number C is correct. Moving to the another question, that is, during compression of a spring, the work done is 10 kilojoules. So the spring is getting compressed, means the work is done on the system. So whenever work is done on the system, our work value will be positive. And 2 kilojoule escape to the surrounding as heat. It is escape to the surrounding, means heat is released. So it will be minus 2 kilojoule. So we need to find the change in internal energy, which is Q plus W. So the answer will be, it is 8 kilojoule. So option number A is also correct. Question number 7. So among the following set of parameters, we need to identify which is the path function. Option number A is saying Q plus W. So Q plus W means what? Q plus W is equals to delta U, and we know delta U is a state function since it depends upon initial and final state. So option number A is not correct. Option B and C is the correct option which represents the path function. Question number 8. Now in this question it is said that an ideal gas undergoes isothermal compression from 5 meter cube to
1 meter cube, and here the external pressure is 4 Newton per meter square. Heat released in this process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminium. If molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mole Kelvin, the temperature of aluminium increases by, so we need to find out the answer. Here the reaction is undergoing in isothermal process. So whenever it is talking about isothermal, we know their temperature is constant. So if the temperature is constant, there is no change in internal energy, so delta U will be equals to 0. Now compression is done, so volume, initial volume was 5 meter cube and our final volume will be 1 meter cube. The pressure is given to us, that is 4 Newton per meter square. So we need to find the W. Here W will be 4, delta V will be V final minus V initial, that is 1 minus 5, that is equals to 16 Newton meter. So what will be the answer? We know that since 1 Newton meter is equals to 1 joule, so here W will be 16 joule, correct? There is a relation between delta U and W, that is Q plus W. Since here internal energy is 0, so our Q value will be minus 16 joule. So this is the amount of heat which was released into the surrounding, and it is again absorbed to increase its temperature of 1 mole of aluminium. Therefore, the Q value will be positive here. We need to find out the temperature of aluminium which is increased. So there was a relation between heat capacity and the heat, that was Q equals to C delta T. So we need to find delta T. So delta T will be 16 divided by 24, that is equals to 2 by 3. So option number 4 is correct. Okay, so now the question is, when a 60 watt electric heater is immersed in a gas for 100 seconds in a constant volume container with adiabatic wall, the temperature of the gas rises from 5 degrees Celsius, and we have to find out the heat capacity of the given gas in joule per Kelvin. So here we see that here I is 60 watt, time is given for 100 seconds. So by this we can find out the amount of heat that is consumed, that will be 60 into 100, that is 6000 joule. Okay, so this was the amount of heat required to raise the temperature of gas by 5 degrees Celsius. We need to find the heat capacity. We know that heat capacity is equals to Q by delta T. So here Q is 6000, delta T will be 5 degrees Celsius, means 5 Kelvin, that will be equals to 1200. So this is the final answer, joule per Kelvin. We got the answer of the heat capacity as 1200 joule per Kelvin. Another question is, 2 moles of an ideal gas is expanded isothermally reversibly from 1 liter to 2 liter at 300 Kelvin. We need to find the enthalpy change. So whenever the reaction is done under isothermally and reversibly, so in isothermally the delta T will be constant. Here the constant term is 300 Kelvin, right? So change in delta T will be what? It was, even when it was expanding it was 300, when it is getting compressed again it is coming back to its original form, then also it was 300 Kelvin, right? So here T2 and T1 is 300 Kelvin. So we need to find the enthalpy change. So we know that delta H is equals to
QP at constant pressure, which gave us an equation NCP delta T. Since delta T will be the same in this process, so our enthalpy, change in enthalpy will be 0. Moving to the another question, that is, here enthalpy, standard enthalpy of formation is given for carbon monoxide, carbon dioxide and water. Okay, we need to find out the standard enthalpy change in kilojoule per mole. तो जब भी standard enthalpy formation का बात होता है तब हमें याद रखना पड़ेगा कि वो सब जो रिएक्शन ओकर हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ओकर हुआ है. ठीक है, मतलब प्रेशर हमारा 1 bar था, टेम्परेचर 298 केल्विन. ओके, इवन द कॉन्सेंट्रेशन वाज कंसिडर्ड एज 1 मोलर. ओके, सो जब ये रिएक्शन ऑकर हुआ, यहाँ पे क्या था कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो अगर हमें इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है तो उसे कैसे निकालते हैं, दैट इज डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट. ठीक है, तो अभी प्रोडक्ट में क्या ऑब्टेंट हुआ, प्रोडक्ट में हमारा ऑब्टेंट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और रिएक्टेंट के साइड में है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिया गया है -110.5 माइनस 241.8. यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है 393.5. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमें मिलता है आंसर 41.2 किलोजूल पर मोल. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, that is 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surrounding expands isothermally in from 1 liter to 2 liter against a constant pressure 3 atmosphere. In this process we need to find the change in entropy. Change in entropy मतलब delta S is equals to Q by delta T. Okay, Q by T. Now अगर Q फाइंड करना है, हमें पता है कि जब भी आइसोथर्मली ये रिएक्शन होगा तो डेल्टा U का वैल्यू 0 आता है. सो हमारा Q होने वाला है -W विच इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V. सो द आंसर विल बी -3 here, it will be 2 minus 1, that is 3 liter ATM. It is given that 1 liter ATM is equals to 101.3 joule. So the answer will be, for finding out the heat, it will be 3 into the 101.3, that is 303.9 joule. हमें निकालना है चेंज इन एंट्रोपी. सो चेंज इन एंट्रोपी विल बी 303.9 divided by 300, that is equals to 1.013 okay joule per Kelvin. So option number B is correct. Moving to another question, that is, here a process is given. Okay, there 4 statements are there. We need to find out कि इन चारों प्रोसेस में कौन सा नेगेटिव एंट्रोपी शो करने वाला है. नेगेटिव एंट्रोपी मतलब जो सिस्टम है वो ऑर्डरली होगा. ठीक है, तो ऑर्डरली होने के लिए जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमें देता है एमोनिया. ठीक है, सो अगर नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम होगा सो एंट्रोपिक भी क्या होगा, एंट्रोपी विल ऑल्सो बी नेगेटिव. सो लेट्स फाइंड आउट डेल्टा एन हियर. डेल्टा एन क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 + 1, सो yes it is -2. So synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen will be negative. Okay, now dissociation of calcium sulfate to calcium oxide and sulfur trioxide. So sulfur trioxide जब फॉर्म होगा वो गैसियस फॉर्म में फॉर्म होगा.
तो गैशियस फॉर्म में फॉर्म होना मतलब क्या, रेंडमनेस और बढ़ना, रेंडमनेस बढ़ना मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होना। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है तो हमें आयंस प्रोड्यूस करता है, तो आयंस प्रोड्यूस करना मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होना। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन इज सॉलिड फेज अंडरगोइंग टू गैशियस फेज। सो अगेन सॉलिड फॉर्म में वो जो अरेंजमेंट था वो क्लोजली पैक्ड एंड सीक्वेंस में था। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका रेंडमनेस और बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाई एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। Moving to another question, here a process has delta H equals to 200 joule per mole, delta S is 40 joule per kilomole, and out of the value given below we need to choose the minimum temperature above which the process will be spontaneous। तो जब भी process spontaneous होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में होना चाहिए, that means delta G value should be less than 0. We know delta G means what? It is delta H minus T delta S, right? So delta H by delta S will be 200 divided by 40, that is 5 Kelvin. Okay, so 5 Kelvin is the minimum temperature above which the process will be spontaneous. So option number C is correct. I hope you like the video. Thank you.